Hello everyone. So in this lecture we are going to Good evening, sir. good evening. So in this lecture we are going to start our new topic, that is support vector machine. So in the previous topic, what we have learned, logistic regression is a classification algorithm meant to perform prediction of discrete values like 0 and 1. It has been kept under linear model because in general we do follow up a linear relationship in terms of before log of odds. Okay, we do say y equal to mx plus c, then we put it into sigmoid function 1 upon 1 plus e ki power minus y. Okay, then the rest of the procedure happens. Okay, so logistic regression is being considered as classification algorithm. The reason is linear regression is failed to perform classification because it gives you the predictions related to the values which are continuous in nature. Okay, it do find the mean y bar x bar in the regression line. So here we are not able to get the discrete results in form of 0 and 1, something like that. Okay, so logistic regression came into the picture and we have seen the complete implementation of logistic regression. We have discussed about the evaluation criteria of logistic regression, and now I'm going to discuss the drawbacks of logistic regression, because what meant us to come for the new algorithms. Okay, and what are the drawbacks? Let's discuss these first. So logistic regression algorithm is having the limitations. So assumption of linearity, that means it assumes a linear relationship between independent variables and the log of odd variable. Independent variable and the log of odds, it assumes a linear relationship. That was the reason we are writing y equal to mx plus c, yeah, wx plus b, and then later on we are saying that the results given by the logistic regression are probabilistic in nature, so it is in the sigmoid form, so it is 1 upon 1 plus e ki power minus y. So still the relationship is being linear. Okay, because we are having a linear relationship, linear equation is followed. Later on the probability you are calculating with the sigmoid function, so log of odds may it get converted. ठीक. So logistic regression may not perform well without transformation of feature engineering. Okay, so we have to follow some feature engineering techniques and then we can use the logistic regression. However, when we were talking about the assumptions of logistic regression, okay, there we haven't said y and x are linearly dependent. No, this is not happened in logistic regression. We are saying that there is a linear relationship between independent variable and the log of odds. उनके बीच में है log of odds और x के बीच में. ठीक है, तो यहां मुझे log of p अपॉन 1 - p करना पड़ेगा और इसका इसका रिलेशनशिप है. ठीक है, एम एक्स प्लस सी. ठीक है, इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ना कि y और x के बीच में. ठीक है, तो ये assumption of linearity है, that is been considered as one of the drawback for the linear regression, क्योंकि इससे आगे फिर बात नहीं करेगा वो. क्वालिटी ऑफ डेटा मुझे चाहिए, डेटा सेट ज्यादा भी चाहिए. Okay, in case of logistic regression it assumes that data should be more.
ज्यादा होना चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होना चाहिए उसकी। इट इज सेंसिटिव टू द आउटलायर मल्टीकोलिनियरिटी, ऑब्वियसली देखिए क्या है, इट मे लीड टू द ओवरफिटिंग, हो सकता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन के साथ भी यही इशू था, इट मे लीड टू द ओवरफिटिंग। ओके, लॉजिस्टिक में ऑल्सो लीड टू द ओवरफिटिंग, हो सकता है। ओके, सो इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द आउटलायर, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द मल्टी कोलिनियरिटी, ये सारा इश्यूज है, हाई कोरिलेशन, तो ये हम नहीं चाहते। अजम्पशन हमारा ये था एल्गोरिदम में कि हमें कोरिलेशन नहीं चाहिए, वो तो हर एक एल्गोरिदम के लिए ये वाला अजम्पशन तो एप्लीकेबल है, कोरिलेशन नहीं चाहिए हमें। बट स्टिल इफ द डेटा आर को लीनियर को रिलेटेड हैं, तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एल्गोरिदम में, ओवर फिटेड हो जाएगा। ओके, सो दैट इज एन इशू। Fine. All the algorithms can lead to overfitting. Yes, all the algorithms lead to the overfitting. But these algorithms are much more subject to the overfitting, जहां पर हमें एक्सपेक्टेड है कि मल्टी कोलिनियरिटी तो हो गई होगा। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। ओके, तो ऐसे कई फीचर्स हमारे डेटा में हो सकते हैं जो कि डिपेंडेंट हो, ठीक है, अपने डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि आप कह रहे हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे लीनियर रिग्रेशन की बात करूं मैं, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन। इफ आई डू टॉक अबाउट द लीनियर रिग्रेशन, लेट मी शेयर माई एंटायर स्क्रीन नाउ। ओके, सो कोलिनियरिटी कोरिलेशन क्यों बोल रहा है वो बार बार ऐसी एल्गोरिदम्स के लिए? ठीक, तो वी मे हैव these x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि डेटा सेट के करस्पॉन्डिंग ऐसे हो सकते हैं जो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो, रिलेशनशिप में हो ये। ओके, मच मोर चांसेस आर देयर। ओके, सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन ना बने, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि योर मॉडल कैन लीड टू ओवरफिटिंग, देयर इज कोरिलेशन इन द डेटा, ओके, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फॉर द कोरिलेशन। ओके, तो हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है वेयर सच मॉडल्स और अल्गोरिदम्स आर एप्लीकेबल, जो मिलता है in that particular case, obviously there are multiple features present in the data, multiple features are present, so we have to take care that ki we are going to use linear regression, so there is a relationship followed in this way where independent and this is dependent, and ये रिलेशनशिप फॉलो होती है, लीनियर है तो डिग्री 1 है। ओके, तो जितने भी एक्स हैं, इट अज्यूम्स कि ऑल आर लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब लीनियर रिलेशनशिप में है। ओके, तो ऐसा मिलना, ठीक है, कि एक्स एंड वाई आर इन लीनियर रिलेशनशिप एंड देयर आर मेनी एक्स, मेनी फीचर प्रेजेंट इन द डेटा, तो इन रियलिटी getting such kind of data where x and y are linearly dependent and x खुद आपस में वट एवर बी दीज फीचर्स आर आपस में कोई रिलेशन ना हो, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाउ दिस पॉसिबल दैट द फीचर x1 इज रिलेटेड टू y लीनियरली, x2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू y लीनियरली, x3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू y लीनियरली, ये है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि x1 एंड x2 आर नॉट कोरिलेटेड एट ऑल? रियलिटी में दिस इज वेरी मच टफ सिचुएशन। यदि ये इससे लीनियर रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि दीज फीचर्स आर आल्सो कोरिलेटेड, एंड वी आर बीन वार्नड दैट काइंडली डोंट यूज कोरिलेशन, डोंट use multi-collinearity. Okay, multi means there are many features which are correlated with each other, so can't perform this kind of means data and put it into the model, so ये issue आ जाएगा। अब इनका डिमांड ही यही, अब आपने क्वेश्चन पूछा सर कि ऑब्वियसली एवरी मॉडल इज सब्जेक्ट टू ओवरफिटिंग, यस, बट इन मॉडलों में क्या लफड़ा है? व्हाट इज द रीजन कि सर इन मॉडल को बार बार दे आर टारगेटेड दैट ओवरफिटिंग दे शुड नॉट हैव, दे शुड नॉट बी मल्टी कोलिनियरिटी, रीजन क्योंकि ये डिफाइंड ही हैं, these models are defined that they should have a linear relationship, so x1 and y should be in linear relationship,
x2 and y should be linear relationship, x3 and y, and whatever be the features which are present in the data, they should be linear relationship with y. अब लफड़ा ये हो गया कि यदि ऐसा रिलेशनशिप है, ओके, एंड एंड you are saying within the feature there should not be any relationship, how this is possible? This is, it's a tough call. रियलिटी में टफ है. ओके, सो ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, जैसे हमने एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में प्लॉट बनाया था, एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में हमने प्लॉट बनाया. वी आर सेइंग as much as is the experiences, salary is also increasing. There are some other factors also which may give such kind of plot, और वो एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकते हैं. ओके, वो एक्सपीरियंस से रिलेट दे कैन डू. फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी एक हो सकता है. सो इफ यू इंक्लूड ट्रेनिंग एंड द सैलरी, तो एज मच एज ट्रेनिंग यू डिड, एज मच एज रिसर्च यू डिड, योर सैलरी इज गोइंग टू इंक्रीज. बट यार, क्या हम ट्रेनिंग और रिसर्च को एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करेंगे? Obviously we are going to count training and the research in the experience. We got the experience, we are having this thing. अब देखो फिर मैटर फंस गया. एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग आपने अलग अलग, यू आर कंसिडर डिफरेंट, और इससे सैलरी इंक्रीज होता है. तो सैलरी जो है भाई, मान के चलिए दिस इज माय टारगेट, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग एंड द रिसर्च आर इंडिपेंडेंट. मान लो, माना है हमने इंडिपेंडेंट, लेकिन क्या ये है? वेदर इन रियलिटी दे आर इंडिपेंडेंट, somehow what they are correlated with experience. Okay, तभी वो बार बार in every time they are saying कि we have to avoid multicollinearity, take care of this thing. So these algorithms are much more subjected to such kind of issues. Okay, relationship वाला. फिर उन्होंने कहा आगे, लिमिटेड आउटकम वेरिएबिलिटी, दैट मीन्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज सूटेबल फॉर, हाँ ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लेम करता है, इट इज क्लेमिंग दैट आई एम बेस्ट इन बाइनरी क्लासिफिकेशन. मुझे 0 1 दे दो, यू कैन गिव मी ट्रू फॉल्स, यू कैन गिव मी यस नो, आई विल डू इट बिकॉज आई नो आई हैव अ बेटर प्रैक्टिस. ओके, व्हाट प्रैक्टिस आई एम हैविंग? दैट आई कैन डिवाइड द डेटा इन दिस पर्टिकुलर वे. मैं कर सकता हूं ऐसा काम, आई कैन डू दिस थिंग. ओके, बिटवीन 0 and 1, and 0.5 is my threshold, I can do this. So I can classify between 0 and 1, yes, no, true, false. Okay, but as we know, there is not only binary classification present in the world, multi-class classification is also present. Okay, so ये वहां पर, it doesn't mean कि आप यूज नहीं करोगे. We can use logistic regression for multi classification also, but we can't expect कि बेटर एक्यूरेसी आपको मिलेगा. वहां मिल गया ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. बट इफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सपोर्टिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, the working of logistic regression, then obviously, and obviously if data is having non-linear relationship, okay, non-linear relationship, so here also there is an issue in case of logistic regression, क्योंकि logistic regression still comes in linear model. आप ध्यान दीजिएगा, I am importing logistic regression from linear model. ओके, तो लीनियर मॉडल मीन्स वो एक्सपेक्ट ये करता है कि लीनियर रिलेशनशिप शुड बी देयर. अब वो वाई या एक्स के बीच में हो, या आपके जो है लॉग ऑफ ऑड्स के बीच में, वट एवर. ओके, स्टिल इट एक्सपेक्ट्स द लीनियर रिलेशनशिप. ओके, सो it is not better suited for such cases. So decision tree and neural network are better suited for non-linear relationship. Okay, overfitting का मैंने बता दिया आपको. Okay, so we have to use regularization technique, L1, L2, we have to use to avoid the overfitting of the model. Okay, not suitable for large number of categories. Obviously, multi-class classification and logistic regression is not the best choice. Binary classification, logistic regression is good, but for not for multi-classification. Okay. Um, logistic regression assumes that observations are independent of each other. ये भी मैंने बोल दिया है. Okay, ये इसका assumption है. Every algorithm का this is the same assumption that features are independent of each other, but still there is an issue. Okay, वो possible नहीं है. So despite of these limitations, logistic regression still
a popular technique, popular mechanism, popular algorithm to be used because it is simple in nature. We have done the implementation of logistic regression. We have seen, sir, we haven't done too much effort in the implementation. Only sigmoid function has been used. Okay, it gives us the probability, and later on, according to the probability, with respect to the threshold, हमने उसको बैलेंस कर दिया था कि जीरो में कौन जाएगा, वन में कौन जाएगा, कर लिया था. Okay, so it is easy to understand, interpretable, efficient in many of the practical scenario when you are dealing with binary classification. Then logistic is good. ओके, तो ये कुछ हमारे इश्यूज थे, कंसर्न्स थे रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एंड देन हम आगे बढ़े. ओके, तो उसमें जो बात है कौन सी, इट टोल्ड व्हेन यू आर सब्जेक्ट टू ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल, ओवरफिटिंग ऑफ द मॉडल. सो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी डोंट हैव एनी सेपरेट लस्सो एंड रिज, ये सेपरेट नहीं है हमारे पास. ओके, वी आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद दिस रेगुलराइजेशन टेक्निक. आप एसके लर्न जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, चेक इट. उसमें आपके पास एक हाइपर पैरामीटर है विच कैन इंक्लूड दिस रेगुलराइजेशन L1 एंड L2. चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, वी कैन यूज इट, है ना. इसके लिए कोई सेपरेट एल्गोरिदम वी आर नॉट गोइंग टू मेक विच वी डिड फॉर द लीनियर रिग्रेशन. ओके, लॉजिस्टिक में ये इंक्लूड होगा. फाइन, ठीक. तो अब हम बात करते हैं अवर नेक्स्ट एल्गोरिदम, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन. सर नाम बड़ा है सर, सपोर्ट भी, वेक्टर भी, मशीन भी. What it is. So now we are proceeding ahead to such algorithms which can perform regression also and which can perform classification also. Okay, right now in case of linear model you are having linear regression for regression and logistic regression for classification, और उसमें भी आपके पास limitations हैं. दोनों को यूज करने में still you are having limitations. लीनियर रिलेशन रिग्रेशन के दे आर हैविंग इश्यूज, इसके खुद के इश्यूज हैं. बिकॉज अगेन इसके इश्यूज क्या थे, खास करके व्हाट आर द मेजर इश्यूज फॉर लीनियर रिग्रेशन विच यू स्टडीड, सर ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग. इट मे लीड टू बोथ ऑफ द केसेस. लीनियर रिग्रेशन में बोथ आर द इश्यूज, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग. तभी हमारे पास L1 एंड L2 आया था, रेगुलराइजेशन. ओके, ऑल्सो सब्जेक्ट टू आउटलायर्स. ठीक है, आउटलायर होंगे तो आई होप यू यू हैव ऑलरेडी डन सो मच मींस एनालिसिस हमने करा है क्लास के अंदर रिलेटेड टू इवैल्यूएशन. वो MSc MAE का हमने ये टास्क परफॉर्म करा है लीनियर रिग्रेशन में, पूरा पढ़ा है कि व्हेन देयर इज एन आउटलायर सो हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट MAE एंड MSc. ठीक है, क्या होने वाला है, पूरी स्टडी है. ये भी इशू है. एंड ऑब्वियसली को रिलेशन, को लीनियरिटी, ये तो लीनियर रिग्रेशन में है ही, ये सारी बात है. फिर लॉजिस्टिक का नाउ वी हैव सीन कि स्पेशल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, रेस्ट इट इज बीन कॉम्प्लिकेटेड, वी कांट एक्सपेक्ट द गुड रिजल्ट्स. तो इनके लिमिटेशंस थे एंड दे आर सेपरेट एल्गोरिदम्स. रिग्रेशन के लिए रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन. बट वी वांट अ सेम नेम एल्गोरिदम which can perform regression also, which can perform classification also. So that algorithm is support vector machine, SVM. अब क्वेश्चन ये उठा, कैसे, हाउ, एंड व्हाट डू मीन बाय सपोर्ट वेक्टर मशीन, व्हाट डू मीन बाय दीज टर्म्स आल्सो. ये भी तो बताइए सर, ये सपोर्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मशीन क्या होती है, ये भी बताइए. बट अभी बात ये सामने आई, व्हाट वी केम टू नो हियर इज वी आर हैविंग अ कॉमन एल्गोरिथम SVM for regression also and classification also. Now the question is, sir, regression होता है तो we are using MX plus C sir in linear regression, और classification होता है तो सर हमने sigmoid यूज करा था सर, 1 upon. Sir, these two mathematical formulas are absolutely different sir. Now you are saying कि in a same algorithm sir we can perform regression also and classification also sir. How this is possible? That means a algorithm uses same approach to solve a problem. So if the approach is same to solve a problem, how it can perform regression and classification both? ये तो क्वेश्चन बन गया, कैसे कर लेगा ये? If the approach is same, how it can do that? And what do you mean by support? What do you mean by vector? What do you mean by machine? What these are? क्या है ये algorithm के बारे में क्या जानना चाहेंगे हम? ठीक है, तो समझते हैं.
क्या हुआ, अभी इनिशियल इंट्रोडक्शन है, दैट सपोर्ट वेक्टर मशीन इज एन एल्गोरिदम विच कैन परफॉर्म बोथ क्लासिफिकेशन एंड द रिग्रेशन. ठीक है. एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन is also known as support vector network, which is a discriminative machine learning classification algorithm. तो स्पेसिफिकली यदि इसको हम देखें, स्पेसिफिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ क्लासिफिकेशन algorithm, क्लासिफायर है ये स्पेसिफिकली, बाकी रिग्रेशन भी करेगा, इट विल डू. ठीक. तो द वे इट डू द क्लासिफिकेशन, similar kind of approach we will use to perform regression. कुछ ना कुछ यही लॉजिक लगाएंगे, वो क्या है मैं आगे बढ़ाऊंगा. ओके, सो राइट नाउ इट हैज बीन टोल्ड that support vector machine is also called as a network. It is a discriminative algorithm and it classifies data points. Okay, right now let us consider binary, but it is not mandatory that binary ही होगा, कुछ भी हो सकता है, multi classification भी होगा. So it can classify data points, it can separate them into two classes. For example, binary classification कर रहे हो तो it can separate, that means it can create a decision boundary. Logistic regression में भी तो ये देखा था ना हमने. In logistic regression also it create a decision boundary, here also it create a decision boundary. Okay, which is called as a hyperplane. In case of logistic regression वहां कोई ऐसा नाम नहीं आया था hyperplane. Support vector machine में है, we are having hyperplane. तो hyperplane क्या दीवार है ये, it is a wall which can separate two different classes, 0 and 1. अभी सिंप्लिसिटी के लिए बाइनरी ही समझो आप, बाइनरी क्लासिफिकेशन. ठीक है. सो व्हाट इज अ गोल इन एन एल्गोरिदम, व्हाट इज अ गोल, क्या होता है गोल, मेरा टारगेट क्या है, व्हाट आई वांट टू अचीव. तो भाई बात यह है, यू आर अवेलेबल विद द डेटा, these are the data points which are present in the space. Your goal is to separate these classes A and B. ठीक है. तो डेटा जैसा है वो तो पड़ा हुआ है स्पेस में. You have to apply an algorithm to classify them, that which one is A and which one is B. ऐसा मॉडल ट्रेन करना, ऑटोमेशन करना है ना मुझे. सो ये क्या है, ये दिस लाइन, दिस इज अ डिसीजन बाउंड्री. एंड इन एसवीएम एल्गोरिथम इट इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेन. इसको हाइपरप्लेन बोलते हैं. ठीक है. तो मेरा गोल क्या होगा एसवीएम के अंदर, आई नीड टू मेक एन ऑप्टिमल हाइपरप्लेन. ऑप्टिमल हाइपरप्लेन आई नीड टू मेक, यानी ऐसी दीवार खड़ी करनी है या ऐसा डिसीजन बाउंड्री बनानी है विच विल क्लासीफाई ए फ्रॉम बी इन ऑप्टिमल वे. ऑप्टिमल का मतलब यानी कि देख भाई, तुम ए हो और हम बी हैं, अपना बीच में कोई लेना देना नहीं, ये दीवार है. एंड यू शुड बी दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम मी एंड यू शुड बी दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम मी. दैट मीन्स आई शुड बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड. ऑप्टिमल का मतलब ये होता है क्लियरली अंडरस्टैंड दैट दिस रीजन बिलोंग्स टू ए एंड दिस रीजन बिलोंग्स टू बी. क्लियर सेपरेशन होना चाहिए. ये रीजन बी का, और ये बीच में मैंने क्या कर रखा है, फेंसिंग कर रखी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है. फेंसिंग कर रखी है भाई, बॉर्डर एरिया है ये. ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है. तो हम लोग भी बॉर्डर पे तो रहते नहीं, हम अपने अपने रीजन में रहते हैं. ठीक है, दूसरे कंट्री के लोग उनके रीजन में रहते हैं, एंड वी पीपल लिव इन अवर रीजन. एंड बॉर्डर में तो आर्मी रहती है. ठीक है, बॉर्डर पर आर्मी रहेगी. तो रीजन डिफाइन करनी है मुझे. यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन यही काम करेगा, ऑफ हाइपर प्लेन बनाना, डिसीजन बाउंड्री बनाना उसको ऑप्टिमल वाली, दैट विल हेल्प इन क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ ए एंड बी. कैसे करेगा ये, अगेन क्वेश्चन हाउ. ये तो गोल है, मेरा टास्क है, कैसे करेगा ये. ठीक. सो सपोर्ट वेक्टर मशीन conveniently perform tasks for both linearly separable and non-linearly separable data using its superpower that is called as kernel trick. तो अभी अपन इस पे आते हैं, अभी अपन इस पर आते हैं, रुको जरा. ठीक, बात करते हैं. लेट मी मेक अ डायग्राम.
ठीक है, इसको एक डायग्राम बना रहा हूं। लेट अस सपोज ये 2D प्लेन है, 2D है, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स एंड दीज आर द पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर ऑफ क्लास ए, दीज पॉइंट्स आर ऑफ क्लास बी। इसको डिवाइड करने के लिए मैंने एक लाइन बनाई, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर प्लेन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेट मी टेल यू। करंटली आई एम डीलिंग विद 2D, 2D यानी आई एम रिप्रेजेंटिंग माई डेटा इन अ 2D प्लेन। ओके, ये जो भी पॉइंट्स हैं क्लास ए के, क्लास बी के, ये सब 2D पर आप प्लॉट कर सकते थे। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना, इफ यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा इन अ 2D, then hyperplane or decision boundary will be a line। ठीक, यानी एक डायमेंशन कम होता है उसका, वन डायमेंशन इज लेस देन द डायमेंशन ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखिएगा। इफ माई डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2D प्लेन, then hyperplane will be of 1D। If my data is distributed in 3D, then hyperplane will be of 2D। यदि ये 4D होगा तो ये 3D होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ योर डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3D, तो इस डेटा को काटने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, आई विल बी यूजिंग अ प्लेन जो कि होगा 2D, 2D प्लेन। सो यदि डेटा 3D में है तो 2D प्लेन मतलब 2D, 2 डायमेंशनल फिगर की रिक्वायरमेंट होगी उसको डिवाइड करने के लिए। यदि डेटा 2D में है तो वन लाइन इज रिक्वायर्ड टू डिवाइड इट। और जितना डायमेंशन बढ़ता चला जाएगा, एज मच एज द डायमेंशन इज गोना इंक्रीज, ऑब्वियसली माय हाइपर प्लेन इज ऑल्सो गोना इंक्रीज। ठीक है, उसका डायमेंशन लेस देन होगा, बस वन लेस देन होगा, दैट आई विल बी यूजिंग। ओके, तो भाई उसने एक शब्द बोला है यहां, ये जो आप देख रहे हो ना डायग्राम, दिस इज द सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट बोले तो आई कैन सेपरेट माई डेटा विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। दिस इज कॉल्ड एस लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल यानी यदि आप एक लाइन से, एक रेखा से यदि डेटा को डिवाइड कर पाए, क्लासिफाई कर पाए, then it is said to be linearly separable data। It is the easiest or the basic case of classification। We have to work over this case only, and then later on you can generalize it to the rest of the cases। यानी अब बड़े केस में अपन ने लीनियर रिग्रेशन में भी यही करा था, लॉजिस्ट में भी यही करा था। वी टुक वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट, वहां पर भी तो यही करा था, वाई लिया था, एक्स लिया था, बस। लीनियर रिग्रेशन ऑल्सो वी डिड द सेम थिंग। ठीक है, लेटर ऑन इफ द वैल्यू ऑफ फीचर्स आर मोर, x1 x2 x2, तो आप इसको जैसा इसका रिजल्ट आएगा, सिमिलरली यू कैन प्रोसीड और यू कैन मेक अ जनरल स्टेटमेंट रिलेटेड टू these also। okay, तो we have to take a simple case, later on we can, ठीक है, मेक अ जनरल स्टेटमेंट। तो यहां पर भी यही है, लीनियरली सेपरेबल डेटा। सो एक्चुअली क्या होता है, दिस इज अ सिंपल वन वेयर डेटा आप एक लाइन से डिवाइड कर सकते हो। इन रियलिटी ऐसा हो सकता है, होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं भी होता है, बिकॉज डेटा है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, एंड हु कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा? आपके हाथ में है क्या? आर यू एबल टू कंट्रोल द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन? आप तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स और ये लगाकर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन डू, बट कंट्रोल नहीं है आपका। ठीक है, डेटा इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स, मेनी पैरामीटर्स, ओके, विच आर प्रेजेंट। ओके, कई डायमेंशंस हो सकते हैं डेटा के, होते भी हैं। ओके, अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी यही तो होती है, डेटा डायमेंशन। as much as data dimensions is increasing, as much as data is increasing, this is the complexity। कंट्रोल में नहीं है डेटा, तो हर सेकंड, हर पल भर पे डेटा बनते चला जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है इसका। इफ एनी एक्टिविटी इज हैपनिंग, डेटा हो गया बस। जैसे अभी क्लास चल रही है, इसका डेटा चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, क्लास चल रही है ना, डेटा बन गया, कंट्रोल नहीं है, हर एक एक्टिविटी पे काम होगा।
ठीक। तो ये इजिएस्ट केस है लीनियरली सेपरेबल। और लीनियरली सेपरेबल डेटा को करने के लिए मुझे लगती है एक लाइन डिवाइड। और एसवीएम को क्या करना है, सपोर्ट वेक्टर मशीन को दिस लाइन, दिस डिसीजन बाउंड्री ये बनानी है, दैट इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल, अब ये ऑप्टिमल आएगी कहां से, देखिए द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज सपोर्ट वेक्टर। मशीन आया, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है तो मशीन लिख दिया भाई ने, ठीक है, इसका इतना टेंशन नहीं लेना। आई नीड टू पिक अप दीज टू टर्म्स, सपोर्ट वेक्टर, ओके, ये क्या है, हु आर द वेक्टर्स, सो द डेटा पॉइंट्स, these data points are called as vectors, ठीक है। these data points which are present in the plane or the space, they are called as vectors। जैसे ये है, ये है, ये है, these are called as a vectors। इनको मैं वेक्टर से मार्क कर सकता हूं, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, these are the vectors। so data points, याद रखते जाइएगा, data points are vectors, ठीक है। हर एक डेटा पॉइंट को मैं ओरिजिन से आई कैन मार्क देम विद हेल्प ऑफ अ वेक्टर, तो इनको वेक्टर बोलता हूं। ये वेक्टर है सारे, ओके। तो जो भी आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, वट एवर बी द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज, ठीक है, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, मैं इन सब के वेक्टर बनाऊंगा, ओके, आई कैन मेक इट, ठीक है, ये सब वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। सो डेटा पॉइंट्स आर वेक्टर्स। तो सर सपोर्ट वेक्टर क्या है सर, व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। तो भाई अब आ जाओ, ये देखिए, अम, ये मेरा क्लास ए है, दिस इज माय क्लास ए एंड दिस इज माय क्लास बी, ठीक है, क्लास बी, ये मेरी डिसीजन बाउंड्री, दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। आई एम टेकिंग अ रीजन, देखिए एक रीजन बना रहा हूं मैं, आपने ये डायग्राम देखा होगा हर जगह, इस टाइप का कुछ, यू हैव सीन द डायग्राम, ऐसा कुछ देखा है कि सर ये जो है एक रीजन बना रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज अ रीजन, लेट अस सपोज दिस रीजन ऑफ इज ऑफ विड्थ डब्ल्यू, ये जो विड्थ है ये डब्ल्यू विड्थ का है वो पूरा। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है, वो एक ऐसी लाइन, ऑप्टिमल लाइन, इट वांट टू क्रिएट एन ऑप्टिमल लाइन, अ डिसीजन बाउंड्री, अ हाइपर प्लेन, जिससे ए और बी दोनों ही क्लासेस दूरी पर हों, डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिस्टेंस। The data points of A and B should have to be present at a maximum distance। वो ऐसी लाइन बनाना चाहता है, क्यों, देखिए भाई समझिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, ये भी मेरी डिसीजन बाउंड्री है, 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 ये सब हाइपर प्लेन है। बट इनमें से ये वाला भाई ये ऑप्टिमल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बी के पास है, दिस इज प्रेजेंट नियर बी, और ए से दूर है भाई, तो ये ऑप्टिमल नहीं है। ये वाला भी, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑप्टिमल, क्योंकि ये ए के पास है और बी से दूर है, ये भी ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो समथिंग नॉट प्रेजेंट, बट ये वाला जो है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, दिस इज एट कंपेटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, ये कंपेटेबल डिस्टेंस पर है। मुझे यही करना है, पता, आई वॉन्ट टू मेक अ हाइपरप्लेन विच इज एट अ कंपेटेबल डिस्टेंस। वो क्या कंपेटेबल डिस्टेंस होगा, वही तो भैया आपका कॉस्ट फंक्शन है, जिसके लिए आपको सॉल्व करना है। आपने लीनियर रिग्रेशन के लिए भी कॉस्ट फंक्शन बनाया, you solved it for that. You have created a cost function for logistic regression also, you solved for that. Similarly, finding an optimal hyperplane in support vector machine will be defined by a cost function and we have to solve for it, कि वो क्या होगा, वो क्या होगा, दैट्स व्हाट हमें पता लगाना है, यही काम करेगा एसवीएम। अब इसमें सपोर्ट वेक्टर कहां आए हैं, कौन सपोर्ट करेगा आपको, कौन मदद करेगा आपको ये पता लगाने में, यही तो खेल है अब। तो दोज डेटा पॉइंट्स विच आर कमिंग हियर ऑन द मार्जिन, यानी जो बॉर्डर पे आ रहे हैं ना, ये
ठीक है, ये इनको सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एज सपोर्ट वेक्टर्स. मीन्स दोज डेटा पॉइंट्स विच आर कमिंग ओवर द मार्जिन, ये जो मार्जिन पर आ रहे हैं, जैसे ये क्लास ए की मार्जिन है और ये क्लास बी की मार्जिन है, ये क्लास बी की मार्जिन है. Okay, so those who are living, those people who are safeguarding the border, they are called as support vector. वही तो सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे पॉइंट, ठीक है, जो मार्जिन पर आ रहे हैं, बॉर्डर पे आ रहे हैं, वो सपोर्ट वेक्टर कहलाते हैं. तभी मेरा नाम तो वेक्टर, क्या वेक्टर यानी डेटा पॉइंट्स. सपोर्ट वेक्टर यानी क्या, दोस पॉइंट्स विच आर कमिंग ओवर द मार्जिन. दैट मीन्स क्लास ए का बॉर्डर एंड क्लास बी का बॉर्डर. ठीक है, अपनी रेस्पेक्टिव क्लास के बॉर्डर पे आ रहे हैं, उनको सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं. सो ये सपोर्ट वेक्टर है ये. अब भाई क्या है, आप पूछोगे सर पॉइंट्स तो सर इसके अंदर भी आ सकते हैं. आ जाएंगे, हाँ आते हैं. इनको नहीं बोलेंगे अपन सपोर्ट वेक्टर. ओके, ये गड़बड़ हो रही है. ठीक है, दिस इज अ समथिंग विच इज एन इशू कमिंग. आई नीड टू आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स विच आर कमिंग ओवर द मार्जिन. ठीक है, मार्जिनल पॉइंट्स निकालना है मुझे. ये सपोर्ट वेक्टर होंगे. ओके, इट मे हैपन दैट क्लास बी का कोई पॉइंट यहां पर आ जाए, क्लास ए में आ जाए. मिस क्लासिफिकेशन, ये मिस क्लासिफिकेशन है. और क्लास ए का यहां पर आ जाए, ये मिस क्लासिफिकेशन है. ओके, ये तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है फिर अपनी क्लासिफिक, वो तो आपको पता ही है फिर. राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द बेसिक्स. व्हाट इज एसवीएम? तो ये हमें पता होना चाहिए ना टाइटल के नाम से, सपोर्ट वेक्टर मशीन. यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप? व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज वेक्टर? एंड मशीन ऑब्वियसली इट्स अ एमएल एल्गोरिदम. ठीक है, तो उसका नाम उसने मशीन रख दिया. ठीक, सो सपोर्ट वेक्टर आर दीज पॉइंट्स विच आर कमिंग ओवर द मार्जिन. ये सारे. ठीक है, तो अभी ये बाद में आता. ठीक है, उन्होंने कुछ और समझाया यहां पर. ये देखिए, तो व्हाट आई टोल्ड कि सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन परफॉर्म लीनियर क्लासिफिकेशन ऑल्सो, लीनियर वाला भी है. ओके, एंड इट कैन परफॉर्म योर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन ऑल्सो. इट कैन डू बोथ. ये कर सकता है. फाइन. ओके, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस आप जो डायग्राम देख रहे हैं सामने, ओके, दिस डायग्राम, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप आपको शो कर रहा है. ये देखिए, दिस इज नॉन लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, तो सर अभी हम तो लीनियर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली, लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, सिंपल वे की बात कर रहे हैं. बट सपोर्ट वेक्टर मशीन इज केपेबल इनफ टू ट्रैक, टू क्लासीफाई नॉन लीनियर रिलेशनशिप ऑल्सो. वो कैसे करेगा? उसके पास दे टोल्ड इट हैज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एस लीनियर कर्नल ट्रिक. इट इज हैविंग कर्नल ट्रिक. ठीक है, तो कर्नल ट्रिक क्या करती है, अभी आगे इस पर और अच्छा बड़ा डिस्कशन करेंगे, अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. कर्नल ट्रिक क्या करता है? इट विल प्रोजेक्ट द डेटा, इट विल प्रोजेक्ट द डेटा ऑन सम अदर एक्सेस. ठीक है, तो जो नॉन लीनियर डेटा है, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस डेटा को ये किसी दूसरे एक्सेस पर प्रोजेक्ट कर देता है. कर्नल, कर्नल ये काम करता है, KERNEL. Okay, that will help me in performing classification. यानी कि if I put this data into another axis, so I can make a separating line between it. तो मैं कर दूंगा उसको. Then I can do. तो कर्नल क्या होता है? एक फंक्शन है ऑब्वियसली. कर्नल ये यहाँ पर पूरा मैथ्स लगा, वो तो हर जगह पूरी कंप्लीट मैथ्स है. MLDL तो कंप्लीट मैथ्स है. सो if the data is non-linearly separable, then it require kernel trick. ट्रिक लगती है यहाँ पे. ठीक है, एक तरीका है ये. क्या तरीका है? कि डेटा को प्रोजेक्ट कर दो डिफरेंट एक्सेस पे, डिफरेंट एक्सेस पे. और वंस द डेटा इज बीन प्रोजेक्टेड ऑन द डिफरेंट एक्सेस, नाउ यू कैन अप्लाई योर दिस क्लासिफिकेशन, योर डिसीजन बाउंड्री अब बना दो इस पे, तो ये क्लासिफाई कर देगा. ये इसका तरीका है. लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ ट्रिक अवेलेबल.
दैट इज वाई आई टोल्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन इट इज ओके, बट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए दिक्कत दे देगा वो. ओके, सो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, इफ इट इज कॉम्प्लेक्स इन ऑल्सो इन नेचर, दैट मीन्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन यदि नॉन लीनियर सेपरेबल है, नॉन नॉन लीनियर डेटा है, ठीक है, नॉन लीनियर, जैसे कि यू आर सीइंग हियर, ये देखिए, ये जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर देख रहे हो, इट इज नॉट लीनियर इन नेचर, ये ठीक है, कुछ कर्व टाइप का बन रहा है. लीनियरली सेपरेबल होता तो सिर्फ एक लाइन बनती, ठीक है, लाइक लाइक दिस जो हमने बनाई थी अभी, ये दिस इज लीनियरली सेपरेबल डेटा, ए को बी से एक लाइन से डिवाइड कर दिया, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो इश्यू है ये. सो व्हाइट पॉइंट्स एंड द ब्लैक पॉइंट्स ये मैं एक लाइन से डिवाइड नहीं कर सकता था, ओके, नहीं तो मिस क्लासिफिकेशन हो जाता. ठीक, तो व्हाट इट डिड, इट यूजेस अ कर्नल ट्रिक. ये जो फाइ बना है ना, फाइ, ये एक फंक्शन है, कर्नल फंक्शन है, जिसने क्या करा, डेटा को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, एक अलग एक्सेस पर, और फिर उसको क्लासीफाई करा उसने. क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे. ठीक, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करते हैं. सो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो 1960s के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. तो अभी क्या चल रहा है भाई, 2024 चल रहा है. So I told in the previous classes also, logistic regression and linear regression, they are also not a new algorithm. बहुत पुरानी है वो, 90s में ही हो गई थी वो तो. They developed in 90s and 20s, early 20s में हो गई थी. 100 साल हो चुके हैं उनको. These algorithms 100 years हो गए, more than 100 years हो चुके हैं, और आप अभी पढ़ रहे हो उनको. और क्या क्लासिफिकेशन अल्गोरिथम्स हैं, मतलब क्लासिफिकेशन क्या बोले, क्लासिफिकेशन लीनियर दोनों ही हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट अल्गोरिथम्स, बेस है, फाउंडेशन है. सो सपोर्ट वेक्टर मशीन डेवलप्ड 1960s में, लेटर इंप्रूव्ड हुई 1990s में बाय वेप्लिक. इसका एक रिसर्च पेपर होगा, रिसर्च, एंड इट इज द फर्स्ट अल्गोरिथम एट दैट टाइम टू बीट न्यूरल नेटवर्क इन द हैंड डिजिट क्लासिफिकेशन. सो हैंड रिटन डिजिट्स का एक प्रॉब्लम होता है. वी आर हैविंग इमेजेस ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स, यानी 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ओके. तो हैंड डिजिट क्लासिफिकेशन यानी कि व्हेन यू इनपुट एन इमेज ऑफ 0, तो उसने उसको क्लासीफाई करा कि नहीं करा, मीन्स ये 0 सही बता रहा है नहीं बता रहा है, ओके. सो क्लासिफिकेशन को उसने इम्प्रूव करा, मतलब बेटर करा 1990s के अंदर, एंड बीट न्यूरल नेटवर्क ऑल्सो फॉर दैट, एसवीएम ने, ओके. सो क्या हुआ, एंड इट गेन द पॉपुलैरिटी because of such accurate classification of hand digits. Okay, so it can be used for face detection, bioinformatics, text and hypertext classification, anomaly detection, clustering के लिए भी also. आप बोलो क्लस्टरिंग सर, सर क्लस्टरिंग तो अलग खेल होता है सर. क्लस्टरिंग कम्स अंडर सुपर अनसुपरवाइज्ड सर. SVM sir is a supervised machine learning algorithm sir. Here we are available with a target sir. टारगेट होता है हमारे पास तो यहाँ. आप कह रहे हो सर एसवीएम को हम अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग में भी यूज कर सकते हैं. क्लस्टरिंग होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय क्लस्टरिंग? क्लस्टरिंग मीन्स ग्रुपिंग ऑफ डेटा विच आर हैविंग सिमिलैरिटीज, सिमिलर पैटर्न होता है जिनमें, वही उनकी ग्रुपिंग होती है, वही क्लस्टरिंग कहलाती है. तो आप कह रहे हो सर एसवीएम तो है, एसवीएम तो सुपरवाइज्ड है सर, हमें यहाँ पर लेबल होते हैं, और अनसुपरवाइज में वी डोंट हैव द लेबल. सो हाउ वी कैन क्लस्टर द डेटा पॉइंट्स, कैसे कर सकते हैं? तो भाई देखिए क्या है, बोला तो गया है. It has been told that SVM can also use for clustering also, but specifically not for the clustering. Okay, अब मेरा भी आपसे क्वेश्चन है कि ये बताइए, क्लासिफिकेशन करते हैं हम, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन में वी मेक अ बॉर्डर बिटवीन क्लास ए एंड क्लास बी बनाते हैं. तो भाई ये क्लास ए का ग्रुप ही है ना भाई, इट इज स्टिल अ ग्रुप ऑफ क्लास ए. तो क्लासिफिकेशन में ग्रुप ही तो बनता है, क्लासिफिकेशन में ग्रुप होता है, और ये क्लास ए का ग्रुप है, क्लास बी का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ क्लास ए एंड ग्रुप ऑफ क्लास बी. तो भाई ये एक क्लस्टर बन गया, एक ये दूसरा क्लस्टर बन गया, बना तो है. तो क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड की टेक्निक है, क्लस्टरिंग में ये काम करते हैं. वी डू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स एंड विच आर द मिनिमम डिस्टेंस, वी ग्रुप देम. हम बोलते हैं चल आ जाओ आप हमारे ग्रुप के हो. तो यहां मैं एक बॉर्डर बना रहा हूं, अल्टीमेटली आई क्लासिफाइड ए फ्रॉम बी. तो एक बार जब ये क्लासिफाइड हो गए कि आप ए हो और आप बी हो, तो भाई इनको पूरे को ग्रुप कर दो.
तो ये क्लस्टर बन गया पूरा ए का, और ये पूरा क्लस्टर बन गया बी का। तो एक तीर से दो निशाने हो गए। ठीक है, अब जरा बात करें, इतना तो हम समझते हैं एसवीएम सुपरवाइज्ड है, एंड वी हैव ऑलवेज यूज दिस एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू सुपरवाइज ओनली, हमेशा करें, करते आ रहे हैं, करेंगे आगे भी, विल डू दिस थिंग। बात यह है कि क्लस्टरिंग कैसे बोल गया यार, ये क्लस्टरिंग कैसे बोल गया? देखिए, सपोर्ट वेक्टर मशीन आर प्राइमरली डिजाइंड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, क्योंकि उसकी अप्रोच यही है, डिसीजन बाउंड्री बनाना, हाइपर प्लेन बनाना। वो एल्गोरिथम लिखी उस बेसिस पे गई है कि आप हाइपर प्लेन बनाओगे, ऑप्टिमल वाला। और ऑप्टिमल क्या होता है समझा दिया मैंने। But they can also be adopted for clustering through a method called as support vector clustering or clustering with support vector machine. How it works, कैसे कर सकते हो आप? सी सपोर्ट वेक्टर क्लस्टरिंग होगी क्या? फिर अभी आप नई चीज पढ़ रहे हो, ये पहले कभी सुना नहीं होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लस्टरिंग। ठीक है, एनीवेज चलो। तो सपोर्ट वेक्टर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, सपोर्ट वेक्टर क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम दैट कैन पार्टीशन द डेटा इनटू क्लस्टर। तो भाई ये तो करता ही है यार। ये क्या कर रहा है? ये जब क्लासीफाई कर रहा था तो बाउंड्री बना रहा था। एंड वंस द बाउंड्री इज क्रिएटेड, वंस द हाइपरप्लेन इज क्रिएटेड, ऑब्वियसली दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, तो क्लस्टर होगा, ये दोनों हो ही गए। ठीक है, सो it works by mapping the data into higher dimensional space using a kernel function and finding the hyperplane that is best separable। यानी भाई भली वो क्लस्टरिंग बोलते, करना उसको यही है। क्या करना? हाइपर प्लेन बनाना, डिसीजन बाउंड्री बनाना। तो वो ये बोल रहा है हाइपर प्लेन बनेगा भाई, हाइपर प्लेन ही बनेगा। ठीक, सो एसवीएम क्लस्टरिंग इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, एसवीएम कैन ऑल्सो यूज फॉर क्लस्टरिंग बाय ट्रीटिंग ईच डेटा पॉइंट एज अ सेपरेट क्लास एंड फाइंडिंग अ हाइपर प्लेन दैट विल सेपरेट द डेटा पॉइंट्स। यानी इसने कान को वैसे ही पकड़ा जैसे पकड़ते हैं। क्या? उसने बोला देख भाई, ठीक, मेरी अप्रोच यही है कि आई नीड टू क्लासीफाई डेटा पॉइंट्स, लेकिन यदि आप मुझे क्लस्टरिंग बोलोगे तो सुनो, तो फिर मेरी कहानी सुनो, मैं क्या करूंगा। इफ यू से मी दैट आई एम अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, सो व्हाट आई नीड टू डू द सेम थिंग। माय टास्क इज टू क्रिएट अ हाइपर प्लेन डिसीजन बाउंड्री। बट यदि आप मुझे क्लस्टरिंग बोलोगे तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देख, I will say that a data point as a separate class and finding a hyperplane. Okay, ये बोलूंगा, that means ये data point, वो बोलेगा let us assume you are of class A, let us assume you are of class B, you are of class B, you are of class B, you are of class A, let us assume। ठीक है, ये करेगा वो। ही clustering will be treating each data point as a separate class, each data point will be considered as a separate class and it will make a hyperplane and try to make a best hyperplane that will separate them। ये इनको अलग कर देगा। ठीक है, यानी कि ये क्लासिफिकेशन करेगा, और क्लासिफिकेशन जैसी हो जाएगा फिर आगे बोल देगा देख भाई मैंने अलग अलग कर दिया। इट विल डू द क्लासिफिकेशन एंड इट विल टेल दैट ओके दिस इज डिसीजन बाउंड्री, this is of class A, this is of class B, now you can make a cluster, this is of cluster A and this is of cluster B। हो गया काम, हो गया काम। ये तो क्लस्टरिंग होती है, ग्रुपिंग करना डेटा का। तो जब इसने इनको सेपरेट कर ही दिया तो ग्रुप कर दो भाई बाद में आगे, क्या दिक्कत है? यू कैन ग्रुप इट। ठीक है, और ये हर जगह है, एप्लीकेबल है। सो एसवीएम क्लस्टरिंग भी हो गया। तो बेसिकली फॉर क्लासिफिकेशन can be used for clustering too। Okay, so it is essential to note that SVM based clustering methods have some limitations। Okay, इसलिए हम स्पेशली क्लस्टरिंग की टेक्निक पर आए हैं, यानी कि अनसुपरवाइज हमने इसलिए अलग से बनाया था टू लर्न के मीन्स and hierarchical clustering and there are many other clustering algorithms, so we have a unsupervised learning approach separate, अलग से पढ़ते हैं अपन उसको। ठीक है, वरना आप बोलो सर एसवीएम से ही सारे काम करवा लो सर, ठीक है, वो अकेला क्या क्या करेगा? इट कैन डू रिग्रेशन, इट कैन डू क्लासिफिकेशन। आप बोल रहे हो सर क्लस्टर में करवा लो, कर रहा है वो, मना नहीं करा उसने। ठीक है, कर रहा है, बट देर आर सम लिमिटेशंस, जैसे कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो भैया एसवीएम के अंदर दिक्कत देने वाली बात है। द वे एसवीएम वर्क, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस। ओके,
The way SVM works na, it requires computational resources, high computational resources. Okay, when you are dealing with a large amount of data or high dimensional data, when you are dealing with this thing, तो SVM मजे दिलवा देगा आपको सॉल्व होने में। क्यों? द रीजन इज, उसको बनानी है क्या, क्या बनानी है उसको? डिसीजन बाउंड्री, डिसीजन बाउंड्री बनानी। यदि डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो ठीक है, तो उसको एक लाइन बनानी थी। ठीक है, इट्स ओके इफ द डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, तो ए एंड बी कैन बी क्लासिफाइड, इट विल टेक लेस टाइम। बट इफ इट इज नॉन नॉन लीनियरली सेपरेबल, यानी आप एक लाइन से नहीं कर सकते उसे डिवाइड, तो फिर आप मान के चलिए उसको ये काम करने में कर्नल ट्रिक लगानी पड़ेगी। इट हैज टू अप्लाई द ट्रिक, देन इट विल यूज द हाइपर प्लेन। ओके, वो करेगा एंड इट विल टेक टाइम फॉर द कंप्यूटेशन। ओके, सो एसटीएम इज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एल्गोरिदम। ये होती है और है, आप लॉजिस्टिक्स से जल्दी रिजल्ट निकाल सकते हो, एसवीएम से टाइम लगेगा। ठीक है, बिकॉज अभी क्या बोला इसने, सब डेटा, जितने भी डेटा पॉइंट्स है सबको वेक्टर्स बोलता है। दोज हु आर इन मार्जिन उनको सपोर्ट वेक्टर, तो इसको सपोर्ट वेक्टर निकालने पड़ेंगे ना। इट नीड्स टू आइडेंटिफाई सपोर्ट वेक्टर, देन ओनली ना इट कैन मेक एन ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, तभी बना पाएगा। यानी हर एक डेटा पॉइंट पर नजर है इसकी। ठीक है, एवरी डेटा पॉइंट पर इसका काम होगा, तभी उसने बोला व्हेन यू आर हैविंग हाई डायमेंशनल डेटा। ओके, यदि है, ओके, तो इट नीड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ड्यू टू देयर इज अ नीड, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी, इसको सॉल्व होने में टाइम लगेगा। फिर सेंसिटिविटी टू पैरामीटर, दैट मींस एसवीएम बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड टिपिकली रिक्वायर्ड ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग लगती है, रेगुलेशन। अब देखिए एसवीएम में वो तो हर एक एल्गोरिदम में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर यूजिंग हाइपर, पहली बात तो ये भाई सॉल्व करने में ही परेशान है अभी, इनिशियल इनिशियल लेवल पे। उसके बाद if in case you are getting less accuracy in SVM, so obviously you proceed ahead for the hyperparameter tuning, and in hyperparameter tuning you will put different parameter, तो और टाइम लगेगा, फिर तो और टाइम लगना है उसको सॉल्व होने में। तो ये मान के चलिए एससीएम इज अ गुड एल्गोरिथम, मना नहीं कर रहे, बट कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी भाई इसकी ज्यादा है। वो क्यों है? when we are going to solve it mathematically, we'll see the, the equations which are used। तो अभी आप ये मत समझ लीजिए कि सर हाँ ठीक है ये था डेटा, ठीक है ये था डेटा और आराम से भाई इसने एक लाइन बना दी, ये डेटा था और ये लाइन बन गई सर, और ये मेरा एसवीएम हो गया। नो, ऐसा है ही नहीं। अभी ये तो एक जनरल केस है जो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया गया है। ठीक है, देर इज मच मोर मैथ्स बिहाइंड दिस सपोर्ट वेक्टर। इट्स नॉट लाइक इजी एज लीनियर, इट्स नॉट लाइक एज इजी एज द लॉजिस्टिक। ठीक है, इट रिक्वायर्स हाई लेवल मैथ्स टू सॉल्व। ओके, सो एट द मोमेंट क्या हुआ कि जो है मेरी सपोर्ट वेक्टर मशीन की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, सेंसिटिविटी ज़्यादा, इंटरप्रेटेबिलिटी, दैट मीन्स इट डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, इसमें जो है हमको, मैंने अभी बोल ही दिया, इट रिक्वायर्स सम गुड लेवल ऑफ मैथ्स। ऑल्सो आउटलायर भैया होंगे तो इम्पैक्ट करेंगे। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन में इफ देयर आर आउटलायर्स प्रेजेंट इन द डेटा, जो है that means ability to handle non-linearly separate data and outlier. Okay, they may not always be the best choice depending upon the specific characteristics। यानी एक चीज है, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आउटलायर, आउटलायर इंपैक्ट करते हैं एल्गोरिदम को, इस एल्गोरिदम को भी करेंगे आउटलायर्स इम्पैक्ट। ओके, सो वी हैव टू रिमूव द आउटलायर्स फ्रॉम द डेटा। नहीं करना। एक चीज और है, क्योंकि आपने देखा कि इट इज गोइंग टू मेक द वेक्टर्स। ठीक है, कोई भी डेटा पॉइंट यहां पर है वेक्टर बना रहा है, कोई भी डेटा पॉइंट यहां पर है वेक्टर बना रहा है, फॉर एवरी डेटा पॉइंट इट इज वेक्टर। और आउटलायर है तो भैया वहां तक ये जाएगा, यदि आउटलायर है तो ये वेक्टर बनाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ना डेटा पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज अ वेक्टर, वेक्टर वेक्टर एल्गोरिदम है, वेक्टर बनाएगा। तो आउटलायर को रिमूव करें। उसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन एक ऐसी एजम्पशंस की बात करें तो स्केलिंग भी रिक्वायर्ड हो सकती है। वी कांट डिनाय स्केलिंग हियर। ओके, डेटा को स्केल करना पड़ सकता है। फाइन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आई हैवंट टोल्ड कि मैंडेटरी डेटा को स्केल करो फिर क्लासीफाई करो। यहां पर
इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं था, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन में वी डू रिक्वायर स्केलिंग, स्टैंडर्ड स्केलर लगाना पड़ सकता है मुझे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, डिस्टेंस बेस्ड है ये एल्गोरिदम, ये वेक्टर बना रहा है, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर रहा है कि सपोर्ट वेक्टर कौन से हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली ये मार्जिन बनाएगा। ओके, ये करेगा ये काम। तो उसकी जो मैथ्स है, ये रिक्वायरमेंट है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम होगा। ओके, तो आउटलायर का ध्यान रखना है, स्केलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है हमें सपोर्ट वेक्टर मशीन में। ओके, ये बात है। ठीक, तो जैसा कि नाम था, अभी इंट्रोड्यूस हो ही रहा है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है, इसको ब्रेक करा। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि वेक्टर वेक्टर जो है, दीज आर द डेटा पॉइंट्स, पहले ही समझा दिया मैंने आपको, वेक्टर आर द डेटा पॉइंट्स। ठीक है, दैट मीन्स द फीचर वेक्टर्स, है ना, वो एक्स वाले है ना, एक्स और वाई, वो जो भी हैं, ये फीचर्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड सपोर्ट प्लस वेक्टर मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ द डेटा विच इज क्लोजर टू द हाइपरप्लेन। यानी मैंने आपको ये भी बता दिया था, दोज डेटा पॉइंट्स विच आर क्लोजर टू द बाउंड्री, ये जो बाउंड्री के क्लोज होंगे उनको अपन सपोर्ट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज अ सपोर्ट वेक्टर। जैसे कि ये सपोर्ट वेक्टर है, ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर है, ये सपोर्ट वेक्टर है, ये सपोर्ट वेक्टर्स है। बाकी दूसरे डेटा पॉइंट भी हैं, वेक्टर हैं वो, दे आर वेक्टर, सपोर्ट वेक्टर नहीं है वो, वेक्टर हैं। सपोर्ट वेक्टर तो बाउंड्री पे आएंगे। ठीक है, सो द वेक्टर्स आर इंटिट्यूटली कॉल्ड एज सपोर्ट वेक्टर्स बिकॉज दे सपोर्ट द हाइपरप्लेन और द डिसिजन बाउंड्री एंड दे एक्ट एज अ पिलर। जो बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, वही बताता है कि ये हमारी देश की सीमा लग रही है यहाँ पे, और जो उस साइड होता है बॉर्डर के, वो बोलता है यहां से हमारे देश की सीमा लग रही। ठीक है, सो यही लॉजिक सपोर्ट वेक्टर मशीन पर एप्लीकेबल है। दैट मीन्स डिसिजन बाउंड्री इज अ बॉर्डर, एंड दोज सोल्जर्स हु आर स्टैंडिंग हियर, they will define they will define that this area, this region belongs to country A and this region belongs to country B। वही सपोर्ट वेक्टर होते हैं। ठीक है, और इन्हीं का काम है कि इस मार्जिन को कैसे ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, ये वाली बात हुई। ये देखिए, ये डायग्राम और अच्छे तरीके से बताया गया। सो दिस पॉइंट इज अ सपोर्ट वेक्टर, दिस पॉइंट इज अ सपोर्ट वेक्टर, रेस्ट आर द डेटा पॉइंट्स, दे आर ऑल्सो वेक्टर्स। और ये मेरी डिसिजन बाउंड्री है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये बीच से डिसिजन बाउंड्री गई है, और ये जो है, ये विड्थ है, दिस इज कॉल्ड एज अ विड्थ। ठीक है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑप्टिमल विड्थ, दिस विल बी माय मैथमेटिकल। ठीक है, मेरा मैथ्स इसी के पीछे लगेगा पूरा, ऑप्टिमल विड्थ निकालने के लिए ये कॉस्ट फंक्शन होगा। ठीक है, ये वाली बात है। सो हाइपर प्लेन की बात करें, आप ये देख रहे हो ना, ये लाइन, ये लाइन, ये डिसिजन बाउंड्री, ये हाइपर प्लेन है। ठीक है, राइट नाउ माय डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2D। ठीक है, 2D है, तो एक जो हाइपर प्लेन बनी है वो लाइन है। इफ इट इज नॉट बिन 2D तो लाइन नहीं होती वो। ठीक है, वो समझा रहा हूं मैं। इन ज्योमेट्री it is n dimensional generalization of a plane that is called as a hyperplane, and n dimensional generalization of a plane। ठीक है, that means it is one dimension। यदि वन डायमेंशन में एक हाइपर प्लेन पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, फॉर एग्जाम्पल यदि आपका डेटा 1D है, 1D है, तो ओरिजिन एक हाइपर प्लेन होगा। यदि आपका डेटा 2D है, तो एक लाइन हाइपर प्लेन होगा, लाइन विल बिहेव एज एन हाइपर प्लेन। 3D है, तो एक प्लेन, 2D प्लेन आपका हाइपर प्लेन होगा। ओके, यही वो बोल रहा है। ठीक है, इट्स अ ज्योमेट्रिकल नोटेशन, n dimensional generalization। Okay, so if you are having one dimensional space, a point will behave as a hyperplane. If you are having 2D, line will behave as a hyperplane. If you are having 3D, an ordinary plane will behave as a hyperplane. This is called as a hyperplane. Take a note. Take a note. It is really how the support vector machine works behind the scenes. The dimensions are the feature represented in the data. तो डायमेंशन तो फीचर्स ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि क्लासिफिकेशन करना है आपको, इन क्लासिफिकेशन, एंड लेट अस सपोज वी वांट टू डू बाइनरी क्लासिफिकेशन, लेट अस से जेंडर मेल है या फीमेल है। ओके, देन इट इज इन वन डायमेंशनल स्पेस, एंड वी आर हैविंग अ डिसिजन बाउंड्री टू सेपरेट इट। सो हमारे पास
जो है इसको डिवाइड करने के लिए, इसको डिवाइड करने के लिए क्या बोला गया? इफ देयर इज जस्ट वन फीचर से जेंडर, यदि एक ही फीचर जेंडर, ओके, ओनली वन फीचर इज देयर, so it is in one dimensional space and a subspace or a decision boundary represent will be n minus 1 0. That means zero dimension is required to separate it. ठीक है, यदि आपके पास एक ही फीचर है, ओनली वन फीचर इज देयर, यानी सिर्फ जेंडर है, या मैं कहूं इफ यू आर हैविंग ओनली वन फीचर सो यू कैन रिप्रेजेंट वन फीचर ओवर अ लाइन। तो इसको डिवाइड करने के लिए मुझे एक पॉइंट की आवश्यकता है बस, ये ओरिजिन वो यही कहना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग वन फीचर ओनली, तो you can divide this with the help of a point, okay, but if you are having more than that, ठीक है, if you are having more than that, ठीक है, so क्या क्या करोगे आप? what we can do, वो बोल रहा है if there are two features, if there are two features age and gender, तो आपको इस डेटा को 2D पे शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका एज, ये मैं आपको अलग से बना रहा हूं, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन 2D, 2D पे शो करना पड़ेगा ऐसे, एज है, जेंडर है, 2D पे शो करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करने की एक लाइन बनेगी। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, इट रिक्वायर्स अ लाइन फॉर सेपरेशन। एंड फिर जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ते चले जाएंगे, यू हैव टू डू दैट। It is important to note also that the number of features for the given machine learning problem can be selected using feature selection technique. Okay, because we don't want every feature to be used here. It will increase redundancy in the data. ठीक है, एंड दे विल बिहेव एज एन नॉइस इन द डेटा। तो मैं सारे फीचर्स को लेकर नहीं करूंगा काम, और करता भी नहीं हूँ। लीनियर रिग्रेशन ऑल्सो वहां भी नहीं करूंगा, लॉजिस्टिक के साथ ऑल्सो आई विल नॉट डू दैट। ठीक है, ओके, आई विल नॉट डू दैट। सो ऑब्वियसली देर विल बी फीचर सिलेक्शन, दोज फीचर्स विच आर नॉट को रिलेटेड को लीनियर आई एम गोइंग टू यूज इट, उन्हीं को करूंगा। ठीक, तो ये वाली बात हुई। एंड यू कैन सी, ये देखिए, यह है आपका क्या, एक हाइपरप्लेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरीके से डेटा को डिवाइड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन। देख, प्लेन के अकॉर्डिंग इसने डेटा को डिवाइड करा। अब बोलोगे सर यहाँ तो दो ही क्लास है, तो प्लेन क्यों लगाई? भाई ये नॉन लीनियर सेपरेबल होगा, इसलिए लगाना पड़ा मेरे को, कर्नल ट्रिक लगाई है और ब्लू को ए से अलग शिफ्ट करा है। ठीक है, बट जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू हाउ हाइपर प्लेन इज बिन मेड एंड हाउ द क्लासिफिकेशन इज बिन डन, तो ये रेड और ब्लू पॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है एक प्लेन से, इसी तरीके से काम करता है ये। ठीक है, यस। So support vector machine, a very important algorithm which is used for regression also, classification also, clustering के लिए भी उसने हामी भर दी है। I can do. It requires support vectors to make a decision boundary and the goal is to find an optimal hyperplane, optimal decision boundary. ठीक है, ये हमारा गोल है। Linearly separable is the basic case. ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट कैन डू विद नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा ऑल्सो, उसको भी सेपरेट कर सकता है। कैसे करेगा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, फाइन। I hope you understood the today's concept.